Dental College. I extend a warm welcome to all of you present here for this special anti-ragging program. And I am pleased to share the distinguished guest to honor with us. His present today is Dr. Sachin Dev Mehta, State Secretary of IDA Punjab. Now I request our Principal Ma'am to give floral welcome to sir. Thank you. Ma'am. You want me to switch sides or something? To seek blessings of God, our second year students will perform a prayer song. Pani pama gama pagama pani dada dasa papa pani mama pama gama gama pani sa. Along with other respectable head of departments for lamp lighting. Please come. Wait. Thank you. I am pleased to share the distinguished guest to honor us with his presence today is Dr. Sachin Dev Mehta sir, the State Secretary of IDA Punjab, graduate from GDC Amritsar, and he is currently serving as State Secretary of IDA Punjab. He is a philanthropist as he is running an NGO named Nirman for social welfare. He is a sports lover too and actively promoting sports in dentistry as he is national chairman of sports dentistry. And we are very thankful for his presence today. Now I request Dr. Gaganjot ma'am along with our head of departments to felicitate our chief guest. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, sir. Please stand close. Thank you so much for being here. Hi, ma'am. Thank you. Thank you so much, everyone. The main objective of ragging
is to break the ice between the senior students and the newcomers. But there are many negative outcomes reported also. To explain this better, our second year students are going to perform a skit. The students of Sirabha Dental College standing in front of you all to enact an anti-ragging skit. I, Riya Kadwal, the narrator of the skit, and would like to introduce the main characters of this role. Namya, Navya, Surbhi and Rupinder will play the role of the juniors, and Natesh, Kirti, Gulleen, Kajal, Vishakha and Nikita will play the role of the seniors. ट्यूबलाइट है क्या? सुनाई नहीं देता? खड़े हो। क्या एटीट्यूड है यार इनमें? बहुत ज्यादा। चलो अपने अपने नाम बताओ। अरे चिंकी और मी। चलो अपने अपने नाम बताओ। यहाँ पे नव्या नाम्या नहीं चलेगा, बोला ना चिंकी और मिंकी। चलो एक्टिंग करके दिखाओ, किसको आती है एक्टिंग? सर हमें तो आती है, इनका पता नहीं। अरे इस बार तो फर्स्ट ईयर में की लहरी भी आई है। ओए देखो ज्यादा फैशन छड़ा है और ये क्या पहना है बहन जी टाइम। हाँ तो क्या खराबी है इसमें? तुझे बड़ा फैशन पता है, उस कॉलेज की ना फैशनिस्टा मैं हूँ। Earlier this was expectations, now reality. Hello everyone. हाय गाइस, कैसे हो तुम सब? और कैसा लग रहा है कॉलेज? वेलकम टू SKSS डेंटल कॉलेज। हम तुम्हारे सीनियर्स हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। बैठो यार बैठो। तूने भी वही सोचा था जो मैंने सोचा था। Scene 2 classroom. Canteen. Hello guys, welcome back to my channel. So this is our first day in first year of student, and we are here with our friends in canteen. Hi बोलो सर। Hi. चलो तुम लोग बैठो, तुम लोग के लिए खाने के लिए लेकर आती हूँ। ये देखो ब्लॉगर्स भी आए हैं इस बार। अरे ओए पिंकी इधर आ। ओए चल नतेश, इनसे वीडियो बनवाते हैं। चल सर की थोड़ी तारीफ करके दिखा। चलो चिंकी और मिंकी वीडियो बनाओ। सर सर छोड़ो सॉरी यार, सर, इसी का मुझसे नहीं हो भी पाएगा। नहीं सॉरी सर सॉरी। यार ये ज्यादा हो रहा है। हाँ चलो प्रिंसिपल मैम के पास वेट करने को। Now coming to reality. अरे बैठो बैठो, कोई मुश्किल एंजॉय करो। चिल आराम करो से। यार। ओह नाइस, कितनी प्रिटी कुर्ती पहनी है। लो टेक। यार तुमने यहाँ के मोमोज ट्राई करे हैं? बहुत अच्छे होते हैं। और बताओ कैसा लगा तुम्हें यहाँ पे? ठीक है, कंफर्टेबल हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने भी वही सोचा था जो हमने सोचा था। Scene 3 in hostel. Expectations. यार क्या बोर हो रहा है यार, बहुत ज्यादा यार। वो देखो चूजे जा रहे हैं। हेलो इधर आओ, खड़े हो जाओ यहाँ पे। ओए चलो एंटरटेन करो हमारा, कमरे लाओ। पिंकी जरा आगे तो आ।
चल तू लीड रोल कर और तुम दोनों बैकग्राउंड डांसर्स बनो। तेरे में बहुत अकड़ है, चल आगे आ, पेड़ बन। वो चिंकी मिंकी तुम उर्जा पेड़ करो और पिंकी तू गाना गा चल। देखा हजारों चलो बस करो ओए बेबी चल मेरी फाइल बना। और हाँ, तू आके नीचे कर, जा जाके मेरा रूम साफ कर। मैम ये ज्यादा हो रहा है। अब हमें ऐसे नहीं बोल सकते। मैम हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। हमारे पेरेंट्स भी इसलिए नहीं भेजा हमें। हम आपकी कंप्लेंट कर देंगे। नाउ रियलिटी। अरे तुम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया गाइस, इतने डरे क्यों हुए हो? मैम हमें एक्चुअली रैगिंग से बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में बहुत होती है। देखो, टेंशन लेने की कोई लोड़ नहीं है। गाइस रैगिंग बैंड है, टेंशन मत लो, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। और SKSS डेंटल कॉलेज एक रैगिंग फ्री एरिया है। तो शाम को तुम लोग आ रहे हो ना डीजे पार्टी के लिए? यस मैम। चलो फिर तैयारी करें। It's the time to socialize with junior students and make new friends. Set an example of decent behavior. Now kindly stand all of you to take a pledge. We, the students, scholars of Shahid Kartar Singh Saraba Dental College, we resolve to take a pledge today that we will stand united, in making this college, ragging free college, and we will not involve in ragging, either in deed, action and thought in our personal life. We will promote fraternity, and brotherhood with dignity, to make this college a ragging free college. Thank you. Thank you. Thank you. Now, with utmost respect, I invite Dr. Sajal Dev Mehta, sir, to grace the dais and share his views with all of us. मैंने वो पेड़ उड़ सुना था ना, तो मैंने कहा फैन के साथ कहीं मुझे ना उड़ा दे बच्चे। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सर नहीं यहाँ तो मैम का राज चलता है। So you know when they definitely, so the moment I entered over here, the topic of discussion was the difference in the mannerism and demeanor of a female leader and a male leader. So that was what I was discussing with Principal Ma'am, that the cookies which were served to me, they were so lined up in a very good fashion and 6 or 7 rows and properly arranged left to right. And when Sumit sir came, तो मैं कहा सुमित पाजी यार मुंडा तो ऐसी बिस्किट रहता है, कहते हैं इसका पैकेट नहीं खोलेगा, पाजी खोल लो तो खा लो लोग। So because boys are a bit practical ना, तो हमें लगता है कि पैकेट में से कोई खा लेगा तो दोबारा पैक नहीं करने पड़ेंगे, टूटेंगे नहीं, हम वैसे टेप लगा देंगे। So I remember an incident of our college when we were in hostel. So सुमित पाजी F block का खाना बड़ा टेस्टी होता था, तुम्हें याद है ना? So we were staying in C block. So we thought कि for some time our mess was off. I think for a month turn-wise mess off होती थी, तो we said okay हम सारे मिलके खाना F block से लगवा लेते हैं. So हमने F block से खाना लगवा लिया. हमारा टिफिन आता था, रात को इकट्ठे खाते थे, 4 या 5 हम बॉयज होते थे. तो धीरे धीरे स्पून गुम गया, हमारे एक स्पून रह गया. And beauty part is that we all used to share that one spoon and food. खाते थे, इकट्ठा खाते थे. तो उसके बाद ये होता था टिफिन तो टिफिन वाला धो देगा, स्पून कौन धोने जाएगा? So eventually what we started, turn wise, one day one person will just swap the spoon out, lick करके उसको, क्योंकि फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा था लाइसोजाइम होता है, मेडिकल वाले टीचर्स आते हैं. सो तो हमने एक दूसरे को जस्टिफाई किया, यार लाइसोजाइम तो होता है, वो भी तो डिसइंफेक्टेंट है, स्पून साफ हो गया. सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद द बॉयज. सो टॉपिक ऑफ डिस्कशन व्हाट स्टार्टेड टुडे was this, by seeing those lines and the sequence and left to right. वैसे मैं seriously बोल रहा हूँ,
इतने अच्छे, इतने तरीके से सजे हुए बिस्किट मैंने आज तक नहीं कभी देखे। And सुमित पाजी पैकेट वाली चीज मुझे याद रहेगी। Sumit sir was my senior. He was my 2 year senior, but he didn't do any ragging to me. We were discussing हमारी ragging कैसी होती थी, लेकिन आपकी skit देखने के बाद, so I have to change the topic because you have announced it. प्रिंसिपल मैम ने आपको पहले बोला था जाने से पहले अनाउंस कर देना कि हमारे कॉलेज में रैगिंग नहीं होती। So मैम एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है या लीनियंट? जैसे हम अंदर एंटर किए, मैम के एंटर करते जो तालियां बज रही थी ना, मैं उससे ही समझ गया था क्योंकि यहाँ सब कुछ माहौल बदला ही है। अब आई केम 5-6 years बैक और 5 साल में सब कुछ बदल गया है। चलो, दैट्स ग्रेट। Well, definitely, you know, that friendship of seniors and juniors, all of you are second years or first years also? First years, first and second years. डेफिनेटली जितने प्यार से ये रैगिंग वाली स्किट हुई है, जितने अच्छे तरीके से दे हैव सेड कि रैगिंग नहीं होगी, अंदर से तो सेकंड ईयर का कभी भी दिल नहीं करता होगा, अंदर से तो उनके मुंह से यही निकलता होगा चूजो कहाँ हो इधर आओ। ये तो सिर्फ मैम के सामने, स्टाफ के सामने और कुछ मेरे सामने, ये जो आपने बहुत ओवर एक्टिंग की है, मुझे सब दिख रहा था उस एक्टिंग के पीछे कि आपकी भावना वो बहुत ऊपर उड़ के बाहर आ रही थी। सो बट again, you know, there are, I just narrate, once I went to Delhi for this anti-ragging seminar, Paji मैं उठे गया college when I entered, and कुछ बच्चों ने मेरी कार को, they surrounded it with the gate man, so I asked them कि what has happened, कोई ragging incidents तो नहीं हो गया, जाने से पहले ही कांड तो नहीं हो गया कुछ? So sir, so we want to meet you, please आप बाहर आएंगे? तो I said okay. मैंने कहा what happened, sir, we have a complaint, अपना उन्होंने कागज सा निकाला। So I got, sir, we are victimized very badly. तो मुझे लगा यार ये तो काम खराब ही लग रहा है, कुछ सीरियस ही होगा रैगिंग का केस। मैं कहा okay, so what is happening? Yes, sir, we are second year, third year and final year representatives. These juniors are they are very bad. They are snobs. I said what has happened? Sir, इतनी सारी कमिटीज बन गई हैं, प्रिंसिपल साहब ने बना दिया है कि स्टूडेंट्स को कोई कुछ बोलेगा नहीं। सर हम पास से सिर्फ ऐसे देखते हैं स्टूडेंट को और बोलते हैं मैम इसने मुझे घूरा। So, सर अगर हम निकल भी रहे हैं, थोड़ा सा कोई टच हो गया, सर धक्का मारा, मैं कहा चलो ये चलता है थोड़ा सा, डोंट वरी, यू नो दिस विल पास बाय। नो सर, दिस इज बैड सर, दिस इज एनक्रोचमेंट ऑफ आवर ह्यूमन राइट्स। हमारी भी तो रिस्पेक्ट है, हमारी भी तो इंटीग्रिटी है, हमारी भी तो इज्जत है। सेकंड ईयर में ऐसे थोड़ा आ गए, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में रैगिंग करवा के आए हैं सर, थोड़ी सी तो करनी चाहिए ना, तो ये तो रिस्पेक्ट भी चलेगी। सो आई थॉट ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल सॉर्ट इट आउट। फिर अनदर क्लास केम, सर आवर प्रिंसिपल हैज मेड अ रूल दैट फर्स्ट ईयर विल हैव द मील्स एंड व्हेन फर्स्ट ईयर विल लीव द मेस ओनली देन द सीनियर्स विल कम। एंड सर 9:30 तक मैस का टाइम है, ये 9:30 तक खाने नहीं छोड़ते, एक एक चमचा दाल का डालते हैं, थोड़ी थोड़ी चपाती खाते रहते। So you know that is what I call the other side of the story. That is the other side of the story. So definitely we never promote ragging because times are changing. जैसा कि even skit has changed. 5 years back जो मैंने skit देखी थी उसमें इसी कॉलेज में, so they did that some student he or she became a victim और उसने अपना कॉलेज छोड़ दिया and she left the college. That was the theme of that skit. Like movies change after every 5 years, 10 years, 20 years, 25 years पुरानी मूवी का रोमांस देखते हैं और आजकल के बच्चे कहते हैं क्या कर रहे हैं यार। वो तो अपने मम्मी पापा को बोलते हैं प्लीज आपकी एनिवर्सरी है, जाओ आज डिनर करके आओ। आजकल के बच्चे ऐसे हैं, they are booking the 25th anniversary or 10th anniversary or 15th anniversary of their parents. Go and be romantic. So something like that. That depiction of the mindset change, it appears in the context of it always. Whenever we say that how society is changing, from where you can depict that, from where you can make it out, it is always from the theater, it is always from the writings, it is always from the columns, it is always from these things only. So अभी वो आज की skit में social media, blogging, food blogger and all these stuff was coming. मोमोज वॉज कमिंग। सो सर मैं जहां भी जाता हूँ ना, मैं बहुत ही, वो कहते हैं ना चाइना का बाइकआउट करो, चाइनीज सामान ना लो, तो मैं बोलता हूँ चाइना ने एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया हिंदुस्तान पे अपने मोमोज भेज के। सो हमारी लड़कियां तो मोमोज के पीछे पड़ गई। सो लड़कियों को मोमोज खाने के चक्कर में लड़के भी जाते हैं। सो देन somebody told, I said this to somebody, so a female got offended. No sir, this is bad.
Momos is not Chinese. Then what is it? It is Tibetan. So yeah, so is that right? So हमें तो Chinese के नाम पे एक दो चीजें बता दी कि Chinese का मतलब एक मंचूरियन है, एक नूडल्स है, और तीसरी ये मोमोज है. So that is the depiction of change in food habits, change in mindset, change in your choices. If you don't want to be ragged, nobody can rag you. That is something related to social rights. Every time I always feel that 20 years back हमारे बच्चों का वो आजकल फेसबुक पे आ रहा है ना, आपने देखा होगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रीसेटिंग ऑफ द किड्स. एक मदर ने चप्पल पकड़ी हुई है, एक बच्चे को मार रही है और दूसरा वैसे चुप करके ऐसे खड़ा हो गया. So that is hardware treatment, that is software treatment. So it is like that. 20 years back जब हम सुनते थे कि अमेरिका में किसी बच्चे को डांटा गया और उस बच्चे ने पुलिस को फोन कर दिया और उसके बच्चे के पेरेंट्स को, इंडियन पेरेंट्स को जेल हो गई. मेरा दोस्त ही था वैसे, उसको 5 दिन की जेल होगी. फिर उसके मॉम डैड को यहाँ से जाना पड़ा उनको छुड़ाने के लिए, और कस्टडी उनके बच्चे की ग्रैंड पेरेंट्स को दी गई. सो ऐसा था. वो तो अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते तो किसी एक दूसरे की क्या सुनेंगे. But the thing, the missing link over here is that I always say that sociology, when you study sociology, we are not the independent and individual entities. We live in a society and we grow in a society. If we are independent, no doubt, this is a theory of microcosm and macrocosm. What is happening? Though we are the entities, but if we have to live in society, we have to interact. It is a matter of give and take. सुमित भाजी सारा एक क्लासमेट ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. सो सीनियर्स आए. सो उन्होंने बोला यार, जब पूछते हैं रैगिंग में, पूछते हैं आपको कौन सी गर्ल अच्छी लग रही है, आपको कौन सा बॉय अच्छा लग रहा है. ऐसी बात हमारे टाइम में तो ऐसी रैगिंग होती थी ना, पुरानी यश चोपड़ा टाइप की. सो उसने बोला होगा कि ये लड़की मेरे को अच्छी लगती है. सीनियर ने बोला यार प्रपोज कर दो. कहना भाजी शर्म आती है भाई, प्रपोज नहीं मैं कर पाऊंगा. कहते यार मत बन, क्या कर रहा है, प्रपोज कर. फर्स्ट ईयर में उसने प्रपोज कर दिया उस लड़की को, उसको ही वाज रिजेक्टेड. व्हाट, तुम यहाँ पढ़ने आए हो, क्या करने आए? मेरी मम्मी पापा ने मुझे यहाँ पढ़ने भेजा, ऐसी बातें करने नहीं भेजा. उनका भी कहे यार बाजी मैं तो सेकंड ईयर फिर कोई सीनियर सीगा तो अरे गई बढ़िया मोटिवेटर. बोले क्या यार फिर क्यों है, एक गद्दी बार तो नाम हो जाती है, दूसरी बार प्रपोज कर दे. सेकंड ईयर में क्या प्रपोज. एंड देन दैट गर्ल सेड तुम्हें अभी तक अकल नहीं आई है, पढ़ने आए हम यहाँ, डॉक्टर बनने आए हैं, डेंटल सर्जन बनने आए हैं. सेकंड टाइम भी हो गया भाजी. थर्ड ईयर फिर ना वो सीनियर कह रहा भाजी तुम 2 साल हो गए मेरा बेवकूफ बनवा रहे हो, अपना नहीं आज पूरे कॉलेज में नाम हो गया है. थर्ड ईयर फिर उन्होंने प्रपोज करता, फिर ना होगी, सब चलता है. सो व्हेन ही केम इन फाइनल ईयर, एक गर्ल सीनियर आई जो इंटर्न बन गई थी उसकी क्लासमेट. कहती यार तूने इस साल प्रपोज ही नहीं किया. सारे पूछ रहे हैं कि कौन सा अगस्त निकल गया, सितंबर अब तक इसने प्रपोज नहीं किया. कहता मैम अब आप भी ऐसे कर रहे हो. कहते नहीं तू कर दे प्रपोज. मेरी बात सुन, कोई बात, हम सीनियर है तेरा भला ही सोचेंगे. And eventually when he proposed, that girl said yes. I was waiting 4 साल हो गया भाई, हर साल प्रपोज करते हो, तो 4th ईयर आ गया तुमने प्रपोज नहीं किया. तो मैंने मेरी सीनियर ने पूछा, मैंने उसको बोला so that is how seniors help. So whenever somebody asks me, the best example of seniors and juniors, how this relation collaboration goes on, अगर कोई boy propose करता है उसको मोटिवेट करने वाले कौन होते हैं? सीनियर्स. आई एम पॉइंटिंग टू सुमित सर बिकॉज़ ही वाज वेरी सीनियर. सो दैट मोटिवेटर इज अ सीनियर. और जो रिजेक्शन हो जाती है उसको हैंडल करने का, देखो कॉलेज टाइम में आपको कोई बड़ी रिजेक्शन तो होगी नहीं, आपको कोई टेंडर तो होगा जो बिल गेट्स रिजेक्ट कर देगा या टिम कुक आपको नहीं मिलेगा. आप बड़े परेशान होगी मेरे टिम कुक से मिल रहा था नहीं मिल पाया. सो आपकी तो छोटी छोटी रिजेक्शन होगी, आपका ये काम नहीं हुआ, किसी का प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, किसी का प्रपोजल किसी और की तरफ चला गया या समथिंग लाइक दैट. सो These motivators, they help you. और जिनका नहीं हेल्प होता फिर वो कहते हैं ना, आपकी पहली बुरी आदत भी आपका सीनियर लगवाता है, चल यार एक पैकेट डाले तेरा दम गलत हो जाएगा. सो ये भी वही सीनियर करवाते हैं. लेकिन उसके बाद when you go and practice, when you feel that okay, और ये गुरदासपुर की बात है, ये 1995 GDC से एक लड़का इंटर्नशिप कंप्लीट करके क्लिनिक खोल लिया. उसने अपने सीनियर से पूछा क्या करूं. उसने बोला देख दांत निकलते निकाल जैसे भी निकलते हैं, पर एट को हाथ न डालियो 1 साल के लिए, जब तक बहुत ज्यादा हिलता ना हो. सो कहता ठीक है. कहता एक एट आ गया, बहुत ज्यादा हिलता था. कहता मैंने शुरू कर लिया करना. वो कहता निकले ना पेशेंट चीखा मारे. कहता फिर मैंने क्या किया, स्कूटर लिया अपना, एक सीनियर के पास गया. गुरदासपुर तो दीनानगर 20 किलोमीटर है.
वो गया अपने सीनियर के पास, पाजी फोन तो होते नहीं थे तब, पाजी दंद नहीं निकल रहा, हिल ही जा रहा है पर पार नहीं आ रहा है, पेशेंट तो दर्द बड़ी हो रही है। कहने अच्छा खाट में तेरे स्कूटर पे बनना है। वो उसके स्कूटर पे आया, ही केम, वो 3 साल सीनियर था उसका, ये वो भी देखे यार ये कुछ पंगा है, नीचे से दे आर पुलिंग इट कि मेडिकल में भी कुछ ऐसा हो रहा है। वो कहते क्या करे, कहते यार मेरा भी एक सीनियर है, वो धारीवाल रोड पे है, दी अदर डायरेक्शन। कहते यार स्कूटर पे कितना जावांगे, कहते क्या करते हैं पाजी बस स्टैंड के सामने मेरा क्लिनिक है, आप पास्ते बन हैं। सो दोज 2 guys 3 year सीनियर फ्रेश पास आउट इंटर्न, दोनों बैठे बस में धारीवाल पहुंच गए अपने सीनियर के पास। पाजी अद्दा है, दंद फंस गया, निकल नहीं रहा। सो उनका 3rd सीनियर जो कि 6 year सीनियर उससे हो गया, उसका 3 साल सीनियर था। एंड देन व्हेन ही केम सर, वो कोई अंदर लीजन सीगा बहुत बड़ा, सो दैट मैंडिबल, देन ही टोल्ड पागलो तुसी दोनों ने मिलके की कर लिया, कहना सर तुसी क्या सीगा मेनू कि फर्स्ट ईयर च कोई दंद बहुत ही ज्यादा होएगा प्रैक्टिस ऑफ द फर्स्ट ईयर ताई कटनी, तो पाजी बहुत बोल रहा सी, कहना जो तुसी मेनू क्या सी मैनू कहता। So but eventually they sorted it out. So not only they are your motivators, your seniors are your motivators, they push you. If they are pushing you to propose someone, they are pushing you to do something good also. They are your biggest confession box also. I still remember after doing my MDS, my biggest fear was when I used to go as a consultant. I was consultant of about 17 clinics in Jalandhar. मैं सुबह 7:30 निकलता था, जिसकी कहाँ रूटनल होती थी मैंने यार मैं करूंगा, कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। मेरा सिर्फ एक ही फोबिया था, अगर मैंने चैम्बर खोल दिया मुझे केनाल ना मिली तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। एंड एट टाइम्स उस डर दे विच फिर सीनियर को फोन करना, पाजी मिल रही कितने नहीं मिल रही, वो खब्बे मोड़ थोड़ा फाइल लूं, थोड़ा सज्जे मोड़ मिल जाएगी। सो दैट वाज द थिंग, वी यूज्ड टू प्रैक्टिस लाइक दैट। एंड इफ वी हैव ब्रोकन द इंस्ट्रूमेंट वी यूज्ड टू टेल सीनियर, पाजी इंस्ट्रूमेंट टूट गया अंदर क्या करूं। और हमारे सीनियर भी हमारी तरह पंजाबी सीनियर बिंदास, चुप कर जा, पेशेंट को कुछ नहीं बचना, अरे अपने तो भेज दे। सो अब तो मेडिकल लीगल बन जाएगा, अब तो हम ये कहते हैं कि बताना है। सो हमारे सीनियर हमें ये सिखाते हैं, पता नहीं आपके सीनियर आपको क्या सिखाएंगे आजकल। हमारे सीनियर कहते हैं कुछ नहीं बोलना, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा। कोई पंगा हो जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, पेशेंट फेंट हो जाए, कुछ हो जाए, सीनियर्स ऐसे भी सीनियर्स, अरे आठ साहब होंगे ना पीजी एमडीएस पढ़ाली की थी उन्होंने, मेरे आठ साहब को फोन पर 58 years old man, now he's 65 now। मैंने कहा मेरे आठ साहब पेशेंट है, पंगा लग रहा है, ठीक नहीं होगा। बाबा जी बड़े तकड़े है, पंजाब की धरती पे रब की बड़ी मेहर है, रब का नाम है, 5 बार पाठ करी, शामी गुरुद्वारे प्रसाद चढ़ा दी, पेशेंट मैं सीनियर होगा सचिन। और मैंने भी शेयर हो जाना यार ठीक है सचिन कुछ नहीं होता यार। टेंशन जब टेंशन हो जाती है, जब आप नए नए प्रैक्टिस में आते हो टेंशन हो जाती है, आप ग्लव्स उतार के बैठ जाते हो, यार कुछ पंगा हो गया सब ठीक हो जाए, तब आप पैनिक। और जब फिर आपको कोई सीनियर मिल जाता है रियाज साहब जैसा या सुमित भाई जैसे, यार कुछ नहीं होता, बड़े बड़े यार एक्सीडेंट भी तो होंगे ही बंदे, सड़क ने डिग के सिर्फ जमीन पे बच तभी बच जाते, बच जाएगा कोई गल। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द रिलेशन ऑफ सीनियर्स एंड जूनियर्स। But definitely when interaction, see the interactions of bad times and harsh times, they are the foundation stone of the relations of the good times. That is a fact. Anybody who has stood by you in your bad time, even while you're ragging, when you are being ragged, if at all, but your college is ragging free, मैम ने पहले ही बता दिया मुझे, वैसे तो मेरे लेक्चर का कोई फायदा नहीं था, मैम ने तो मेरे को बोला था आप ऑफिस से वापस कॉफी पियो जाओ, आप जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कॉलेज इज रैगिंग फ्री। बट स्टिल मैंने कहा मैम अब इतनी दूर से आया हूँ तो 2 मिनट थोड़ा सा लेक्चर भी दे लेता हूँ, तो मैम कहती चलो दे दो लेक्चर, ही आपकी मर्जी है, बट हमारी तरफ से ये रैगिंग फ्री है। सो दैट इज द थिंग। सो व्हेन यू आर बीइंग रैग्ड, योर pals who stand by you when you are being ragged, because humiliation which you face. Me and Sumit sir were discussing the times when we were ragged so badly, it was humiliating for us. First ragging was so, इतनी गंदी लगती है ना फर्स्ट रैगिंग, आपका खून खौलता है, you feel like punching someone, you feel like ऐसा होता था कि यार ये क्या हो गया। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में आपने देखे होगा ना, वो डोला and they are stripped down and they are dancing. When I was ragged for the first time, there was a Gurudwara at Temple and Gurudwara at the back side में जीठा रोड वाला Gurudwara and Temple लाल लाल। So I was praying, रब्बा मेरे कपड़े लाओ तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। एंड उसके बाद इंसानियत क्या
भगवान से विश्वास उड़ गया था, यार भगवान को इतनी प्रार्थना की। और नेक्स्ट टाइम सीनियर्स मिलते थे जब अपनी क्लास में से बैठे, सर रैगिंग तो नहीं करोगे? 2 बटन खुल गया यार, कहते कितने बेशरम जूनियर्स आ गए तुम्हारे। सो वो बेशरम जूनियर्स क्यों थे? उनकी क्लासमेट्स कहती थी कि सीनियर्स ने हमें ऐसा बनाया है। वो कहते हैं कि हम इतने पूरे तो नहीं थे, जमाने ने थोड़ा सा बना दिया। So rest, well, definitely don't miss out this link of social interaction and whatever your campus is flourishing very finely under the able leadership of ma'am. And definitely Sumit sir, head of oral surgery department, Vishal ji, head of ortho department, Sakshi ma'am from Pedo, Rohit ji from Perio, and Dr. Dinkar and all our medical fraternity staff members also. And you must be getting many other activities to channelize your energies. मैं तो बच्चों को ना एटम बम कहता हूँ, जो फर्स्ट सेकंड ईयर पे होते हैं, इतनी एनर्जी होती है इनमें, ये तो बेटर है कि किसी सही जगह लग जाए। नहीं लगाएंगे मैंने कोई कांड करने करना है, किसी को मारेंगे, किसी को पीटेंगे, कोई और पंगा करेंगे। सो मैं जब भी ये यंगस्टर्स को देखता हूँ ना, क्योंकि मैं भी ऐसे था। सो एक मेरा फ्रेंड था सर, वो 3 भाई होते थे, वो एक बार लड़ते रहे, गर्मियों की छुट्टियां हुई, बोलते मम्मा सबके घर में कुत्ता है, हमने भी कुत्ता पालना है, क्योंकि उन्होंने कहती 3 दिन तो पाल ले, मुझे और कितने पाल लो। सो वो दैट ह्यूमन बॉन्ड, दैट एनर्जी लेवल, सो इफ दिस इज चैनलाइज्ड इन द राइट डायरेक्शन, कोई स्पोर्ट्स, आई हैव सीन दैट स्पोर्ट्स का यूनिट आपका बहुत अच्छा है। 1-2 बार वॉलीबॉल भी बच्चों ने जीता, क्रिकेट में भी अच्छा खेलते रहे। सो सम स्टूडेंट्स आर स्टिल नाउ दे आर प्रैक्टिसिंग, दे आर प्लेइंग, और अदर थिएट्रिक्स और आर्ट, तो कुछ ना कुछ समथिंग लाइक दैट, इफ इट कीप्स ऑन गोइंग, so their energies will be channelized. Otherwise तो डर ही लगता है एटम बम से। तो कहते हैं हिरोशिमा नागासाकी के बाद एटम बम से तो अब भी डरता था, और ये तो ह्यूमन बॉम्ब्स है। But definitely this channelized energy will definitely good for the nation and for each and everybody. And for the staff members also, it is always pleasure to be with you. I always say that whatever these posts are just mere decorations only, but otherwise we are the pals, we are the friends, and whenever I come to any college or meet my seniors are still my seniors for me, and my contemporaries are still my contemporaries for me. और मेरे टाइम के जूनियर तो मेरे को हमारे को इतना पूछते भी नहीं थे, क्योंकि रैंकिंग थोड़ी कम होनी शुरू हो गई। But still I am always available for any kind of work if you have, and even for the students, anything you need today, tomorrow, after 1 year, after 2 years, after 3 years, we try to help out by giving our part to the society as professionals. Thank you one and thank you all. Thank you so much, sir, for sharing your views. And I'm sure you all have enjoyed the lecture. Yes. So give a huge round of applause for him. Thank you so much, sir. मैं बैठा तो मेरे से सुमित सर मेरे सीनियर हैं। पहला सवाल ये पूछा कि केड़ा सी जड़ा सेट होया फाइल यूज जाके। So that gossip is still ignited in his mind. So that is the relation of seniors and juniors. Thank you so much, sir, for coming here and sharing your views. Now I request Principal Ma'am to accompany our chief guest for high tea.